Delhi remains shrouded in a hazardous haze with the air quality index falling in the very poor range. The Delhi Pollution Control Committee reports that the city experienced its highest pollution levels from the 1st of November to the 15th of November, coinciding with a surge in stubble burning incidents in Punjab and Haryana. Schools in the national capital have been instructed to halt in-person classes with the exception of classes 10 and 12 until November the 10th. Meanwhile, the Delhi government will consider the Supreme Court's directives while making a decision on the odd-even car rationing scheme. Arzu Seth is joining us live from ITO in the national capital. Arzu, what is the situation in Delhi today? What are you seeing around you at ITO? Any reduction in traffic? Any reduction in vehicular movement there? Arzu, can you hear me? Okay, we're having technical trouble clearly with Arzu's connection. Let's attempt to go to Akshit if we can, who's live at Anand Vihar. Are you able to hear me, Akshit? Yes, I can. Akshit, what is the situation in Anand Vihar today as far as the AQI is concerned, and the measures that the Delhi government has been taking, are they working on ground? Well, you know, as the national capital continues to battle with the perennial problem of rising air pollution, the political slugfest can also be witnessed at this time. And as we know, yesterday Supreme Court also pulled up the centre and the state to actually take some measures to tackle the air pollution. Well, right now I come to you from Anand Vihar area, which is also one of the spots which is the most polluted one when it comes to the rising air pollution in the national capital. And as you can see, we show you the visuals also right over here. Then the effect of the rising pollutants can be witnessed in air because now there are also reports that nitrogen dioxide is also increasing, which gets released from the vehicles and is also harmful to some asthma patients and of course to healthy people also, because it can penetrate deep into their lungs like PM 2.5 only. Of course, on the roads you can see a lot of traffic, a lot of vehicular movement, which clearly shows that till now the pollution from the vehicles remains to be one of the major contributor when it comes to air pollution in the national capital. And also as the government has also come up with now the odd even scheme after a gap of 4 years, the Supreme Court very strictly remarked that the odd even scheme is merely for optics without any substantive result and efficacy. So that also has to be checked out. And perhaps the Supreme Court also noted that this issue of air pollution should not merely be reduced to political battle, and something substantive has to be done by both centre and state governments to ensure that people can breathe in fresh air. And they have also pulled up Delhi government saying that there are lots of buses which are still running on the roads of the national capital, which pollute and also run at half capacity. So that also needs to be checked. And the Supreme Court also didn't spare the central government, saying that the MSP, minimum support price, should be ensured for farmers, and there should also be some alternative to the paddy crop burning, so that this issue can be tackled with some seriousness. Well, we will also try to talk to some people as to how they feel about this perennial problem of pollution. Sir, ये प्रदूषण काफ़ी टाइम से जो है दिल्ली में देखने को मिल रहा है, किस प्रकार की दिक्कत होती है आपको? सांस लेने में दिक्कत होती है, क्या होता है? यही ना, थोड़ा सा सांस लेने में हल्का दिक्कत तो पड़ता ही है, जैसे दम घुटता है हल्का हल्का, और आँख में जलन वगैरह भी होती है? हाँ, हल्का लगती है। तो आपने कई डॉक्टर वगैरह से बात किया? नहीं, अभी तो डॉक्टर से बात नहीं की, ज़्यादा हो गया तभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जी। So Uday, as you heard, people are saying that they feel some problems when it comes, while breathing, and they also feel that gritty feeling in eyes also, because as we speak also we can feel that gritty feeling in throat and in eyes also. So of course there are some measures which the Delhi government is taking, like spraying of water and suppressants on the roads, so that the dust which has been accumulated in the air can be swept out. But still no major relief can be witnessed in the national capital, because still that effect of rising pollutants can be felt in the air,
and the people are getting sick. The admissions in hospitals are also rising. So of course, it will be very important to see what actions are taken by central and state governments after the Supreme Court has also stepped in to curb the air pollution, because it's really important that whether we will be back right here next year posing the same questions about the same issue, because now this has been a perennial problem of which the Delhiites have to bear the brunt of. Yes, let me also quickly rope in Mahendra Mahi at this point. He's joining us live from Noida. Mahendra, what is the situation in Noida today? As far as the UP government is concerned and the local administration there, they've also been proactively taking steps to ensure that measures are put in place to reduce vehicular pollution, commercial vehicles pollution, and also dust, which also is a major factor apart from stubble burning. बिल्कुल, देखिए पॉल्यूशन नोएडा में लगातार बरकरार है और इसका जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए पहले दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों की छुट्टी की गई, अब नोएडा के डीएम ने भी छुट्टी के आदेश दे दिए, यानी कि जो छोटी क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक के सारे स्कूल को बंद कर दिया गया है अगले 10 तारीख तक। अगर देखा जाएगा पॉल्यूशन कम होता है तो स्कूल खोला जाएगा, अदरवाइज जो स्कूल और आगे तक बंद किया जाएगा। दूसरी तरफ देखिए, अगर बात करें पॉल्यूशन की तो आज नोएडा में जो AQI है वो 530 के आसपास है और ऑल ओवर नोएडा की बात करें तो 550 है, यानी कि पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। कल थोड़ी राहत मिली थी क्योंकि कल पूरे दिन धूप निकली थी, मगर आज पॉल्यूशन दोबारा अपना कहर दिखा रहा है। विजिबिलिटी दोबारा फिर से बढ़ गई है क्योंकि कल थोड़ी बहुत राहत मिली थी, मगर आज सड़कों पर अगर आप जाएंगे तो धूल मिट्टी आपको दोबारा उड़ते हुए दिखा देंगी। सरकारें यानी कि अथॉरिटीज यहाँ क्या कर रही है वो मैं आपको बता दूं। कल पर्यावरण मंत्री आए थे, उन्होंने तीनों विभागों की बैठक की थी, यानी नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण, इन तीनों विभागों के साथ बैठक की थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आप पॉल्यूशन रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या आप पे सख्त प्लान है। और ये हर साल का मीटिंग है, ये नहीं है कि इस बार की मीटिंग हो, हर साल ये मीटिंग होती है, मगर सॉल्यूशन इससे कुछ नहीं दिखता। तमाम जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं उनमें शामिल, मगर अधिकारी फील्ड में नहीं जाते। चोरी छुपे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पूरे नोएडा NCR में। ग्राफ 4 होने के बावजूद भी, देखिए ग्राफ 4 पूरे NCR में लागू है, मगर उसके बावजूद भी जो चोरी छुपे जो काम चल रहा है उसके कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है। खासकर अगर आप ग्रेटर नोएडा की तरफ जाएंगे तो ग्रेटर नोएडा की तरफ तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं, तमाम ऐसे कंस्ट्रक्शन वाले साइट है जहां अभी भी धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसके ऊपर जो ग्रीन कवर होता है वो भी नहीं ढका जाता, मतलब नियमों का उल्लंघन किया जाता है। अधिकारी जाते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, चालान छोटा मोटा काटते हैं और उसके बाद वापस लौटाते हैं, मगर इस सबसे जूझ कौन रहा है? आम जनता। जहरीली हवा कौन इनहेल कर रहा है? आम जनता, क्योंकि अधिकारी घर से बाहर नहीं निकल रहे, अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकल रहे। उनके दफ्तर में एयर प्यूरिफायर लगा, मगर आम जनता को सुबह निकलना ही है अपने रोजमर्रा काम के लिए। उसके साथ ही साथ देखिए जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे, उनको भी अब बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, थॉट प्रॉब्लम हो रही है। हमारे कई स्कूल के प्रिंसिपल से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा, देखिए अभी जो स्थिति है, हम बच्चों को प्लेग्राउंड में जाने से मना कर रहे हैं पहले, क्योंकि प्लेग्राउंड में ठंड आती है, प्लेग्राउंड में एक्टिविटी बढ़ जाती है, मगर अभी उन्होंने फिलहाल प्लेग्राउंड में किसी भी तरह की एक्टिविटी को बंद कर रखा ताकि बच्चे बीमार ना हो, क्योंकि स्थिति नोएडा की बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। कल थोड़ी राहत मिली थी जरूर, मगर आज फिर से AQI है वो 530 के ऊपर पहुंच चुका है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। तमाम जगहों पे वाटर टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सड़कों पे जहां धूल जमे रहते हैं वहां साफ किया जा रहा है। स्मोक गन, जो तमाम हॉटस्पॉट एरिया है, यानी कि जहां सबसे ज्यादा डस्ट उड़ते हैं वहां स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर कुछ जगह ऐसे हैं जहां स्मोक गन लगाए तो गए हैं मगर वो वर्किंग नहीं कर रहे, ये भी एक लापरवाही बरती जाती है। देखिए अगर हमें पता है कि पॉल्यूशन अक्टूबर के महीना में शुरू हो जाता है, क्यों नहीं हम अपनी पूरी तैयारी पहले से ही सुनिश्चित कर ले। मगर जो अधिकारी है ये कुंभकर्ण की नींद लेकर सोते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता कि जनता जहरीली हवा ले रही है, जहरीली इनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद देखिए तमाम जब चीजें बढ़ती गई, पॉल्यूशन बढ़ता गया नोएडा NCR में पूरा, उसके बाद कोर्ट का एक सख्त टिप्पणी आया सरकारों को, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये राजस्थान, तमाम लोगों को ये कहा गया कि आप तुरंत पराली जो किसान जो पराली जला रहे हैं उन पर रोक लगाइए, उनको सब्सिडी दीजिए, क्योंकि हर साल क्या स्थिति हो गया है, अगर हम शुरू हुए तो हम नहीं रुकेंगे। कल ये सख्त टिप्पणी करते हुए तमाम सरकारों को फटकार लगाई।
मगर हकीकत में क्या सरकार इसको कितना सीरियस लेती है? क्योंकि देखिए लगातार नोएडा एनसीआर का जो पॉल्यूशन लेवल है बढ़ता ही जा रहा है। जबकि अभी सोचिए धनतेरस आना बाकी है, दिवाली आनी बाकी है, उसके बाद जो स्थिति होगी वो बेहद गंभीर होने वाली है। अगर ऑल ओवर परसों की बात करें तो देखिए ऑल ओवर जो एक्यूआई था वो 950 के पार पहुंच गया था। यानी कि सोचिए जो पॉल्यूशन नोएडा एनसीआर में 100-150 रहता था वो 950 पहुंच गया। तो क्या ही स्थिति होगी दिवाली के आसपास? पटाखे जलाए जा रहे हैं बैन होने के बावजूद भी, यानी कि ना कोई पटाखे बेच सकता है, ना कोई खरीद सकता है, ना कोई जला सकता है, मगर उसके बावजूद भी तीनों काम नोएडा एनसीआर में बड़े धड़ल्ले से हो रहे। दिल्ली के मंत्री कहते हैं कि दिल्ली में पटाखे बैन है तो नोएडा में लोग खरीदते हैं, नोएडा के लोग कह रहे हैं हम दिल्ली जाते हैं वहां से लेके आते हैं। मतलब आरोप एक दूसरे पे जारी है मगर काम कोई नहीं करना चाहता। अक्टूबर माह में पॉल्यूशन बढ़ रहा था, उस टाइम किसी ने मीटिंग नहीं की, उस टाइम किसी ने ये नहीं कहा कि हम ये एक्शन प्लान लाएंगे तो उसकी वजह से पॉल्यूशन कम हो जाएगा। जब पॉल्यूशन अंतिम चरण पे है, यानी कि एकदम अपने सबसे खतरनाक श्रेणी में, उसके बाद लोग मीटिंग करना चाह रहे हैं, लोग एक दूसरे पे आरोप लगाना चाह रहे हैं, मगर इन बीच पिस कौन रहा है? आम आदमी। इसमें कौन पिस रहा है? वो बच्चे पिस रहे हैं जो स्कूल जाते थे, बच्चे वो पिस रहे हैं जो कॉलेज जा रहे हैं। उनको ये इनहेल जो जहरीली हवा जो इनहेल कर रहे हैं और इसके वजह से उनको थॉट की प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है और इन फ्यूचर उनको और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो जहरीली हवा जब हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम जो प्रदूषित हवा है वो हमारे अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है। उसके कारण लोगों को आंखों में जलन हो रही है, सांसों में तकलीफ हो रही है लेने में, और तमाम तरह की जो प्रॉब्लम हो रही है वो आ रहे हैं, जिनको ज्यादा गंभीर स्थिति बन रही है। यानी कि जो अस्थमा पेशेंट है या जो दमा के पेशेंट है, जिनको सांस लेने में पहले ही प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करा रहे हैं। डॉक्टर का साफ तौर पे कहना है कि अभी आप लोग बिल्कुल बाहर मत निकलिए, आपके लिए ये जो हवा है जहरीली है और ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। भविष्य में आपको और इससे ज्यादा जिसे कहते हैं गंभीर बीमारी भी हो सकती है। जी रजत, बने रहिए आप हमारे संग। मैं इस वक्त अनिल चौधरी का भी रुख करना चाहता हूं, गाजियाबाद से इस वक्त जुड़ गए हमारे संग। अनिल, इफ यू टॉक अबाउट गाजियाबाद, व्हाट इज द सिचुएशन देयर? Normally there is a lot of industrial pollution as well in Ghaziabad area. Have industries also been told to stop functioning or at least control their pollution standard? What are the measures that have been taken by the Ghaziabad authority and the UP government on it? And are they having results on ground? देखिए, गाजियाबाद की सिचुएशन बेहद खराब है। आपने सिचुएशन की बात की इसलिए मैं बता रहा हूं, जो आबो हवा है गाजियाबाद की बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। जो जमीनी स्तर पर कार्रवाई दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। ये जरूर है, ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, तमाम मीटिंग शुरू हो रही हैं, जो सरकारें हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है फटकारें लगाई गई हैं कई सरकारों को, और राज्य सरकारों को ये कहा गया है कि आप जमीनी स्तर पर काम कराएं। आप आपस में ही इस तरीके से फाइट करते रहेंगे, एक दूसरे पर तंज कसते रहेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो आम जनता है वो इससे जूझ रही है, लोगों की सांसों पर वार हो रहा है, लोग परेशान हैं, और लगातार इस तरीके के जो बयानबाजी सामने आ रही थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त कहा है, उस सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ही लगातार गाजियाबाद में एक्शन भी देखा जा रहा है। बीते कल ही गाजियाबाद में छात्रों के लिए ये खबर दी गई है, उनको ये कहा गया है, स्कूलों को बंद करने की बात कही है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है और ऑनलाइन क्लासेस उनकी शुरू की गई हैं, जिसमें कि प्री प्राइमरी क्लास से लेकर 9वीं कक्षा तक स्कूल क्लासेस को बंद कर दिया गया। ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली हैं। फिलहाल छात्रों के लिए राहत की ये बात जरूर है, क्योंकि अब जो छात्र जो सड़कों पर और जो सड़कों के द्वारा जो है स्कूल पहुंच रहे थे, जो आसपास का वातावरण गंदा है उसको इनहेल कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब वो उससे बचेंगे और घर के अंदर ही क्लास ले पाएंगे। तो ये छात्रों के लिए राहत भरी ये खबर जरूर है। फिलहाल किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर गाजियाबाद का जिला प्रशासन काम कर रहा है, उस पर भी हम नजर डालते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, एक बार जरूर जो है छिड़काव किया जाता है सड़कों पे, क्योंकि ग्रैब 4 लागू होने के बाद तमाम पाबंदियां लगा दी जाती हैं। वो पाबंदियां किस तरीके की हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब ग्रैब 4 लागू हुआ तो उसके बाद
जो तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको बंद कर दिया गया और ऐसी फैक्ट्री और कारखानों पर रोक लगाई गई जो ज्यादा पोल्यूशन फैला रही हैं। एक टीम गठित की गई, वो उसको नोट करेगी और देखेगी, बाकायदे उनका चालान भी काटा जाएगा। पर ग्राउंड जीरो पर क्या है, तमाम कागजी कार्रवाई कर दी जाती है, तमाम बैठकें की जाती हैं, पोल्यूशन पे ये काम करना है। हालांकि हर साल ये स्थिति बनती है, तो एक्शन प्लान क्यों तैयार नहीं किया जाता है, ये बड़े सवाल हैं। फिलहाल मैं NH9 पर मौजूद हूँ, किस तरह की तस्वीरें हैं वो भी मैं अपने दर्शकों को दिखा देता हूँ। ये भी जरूरी है कि आज की सड़कों के हालात क्या है, आसपास का कैसा दृश्य है, वो देखना भी दर्शकों को जरूरी है। आप देख सकते हैं ये गाजियाबाद की सड़कें हैं, नेशनल है हाईवे 9। मैं आपको दिखा रहा हूँ, धुंधली सी आपको सारी तस्वीरें दिख रही होंगी, जो वाहन है वो धुंधले से दिखाई दे रहे होंगे। वजह यही है कि आज थोड़ी सी विजुअलिटी भी कम है, क्योंकि पोल्यूशन की चादर ने पूरे गाजियाबाद को अपने आगोश में लिया हुआ है। फिलहाल सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं, जिसके चलते थोड़ा सा विजुअलिटी ठीक हुई है। और वहीं दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो धुंधली सी दिखाई दे रही होंगी, इस पोल्यूशन की चादर में ढकी सी हुई दिखाई दे रही है। ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जो पूरे दिल्ली NCR को जिसने अपनी चपेट में लिए हुए है, अपनी आगोश में लिए हुए है, जिससे लोगों का दम घुट रहा है। तमाम एक्शन प्लान की बात की जाती है, पर आखिरकार जमीनी स्तर पर क्या दिखता है वो बिल्कुल नील है। दरअसल मैं आपको बता दूं, क्योंकि नील मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुबह के वक्त में एक बार जरूर नगर निगम और जो तमाम संस्थाएं हैं गाजियाबाद की, वो छिड़काव करने के लिए पहुंचती हैं और एक फोटो क्लिक किया जाता है, वो अपने अधिकारी को भेज दिया जाता है कि हमारा काम पूरा हो गया। आप समझ सकते हैं, इस तरीके से एक रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है। फिर भी क्या होता है, लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। यही वजह है ग्राउंड जीरो पर लगातार काम उस लेवल पर नहीं हो रहा है। जो एक्शन प्लान ग्रेफ 4 के जो नियम है जिस तरीके से लागू होने चाहिए वो लागू नहीं है। यही वजह है लोग जो है इस दम घोटू हवा को इनहेल कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पोल्यूशन से राहत मिले, पर फिलहाल मौसम विभाग का भी कहना है कि आगामी कुछ दिन बाद आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसके चलते मौसम में कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है, हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में जैसे ही हवा चलेगी और बारिश होगी तो कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर उसका देखने को मिल सकता है। तो आप देखिए, आने वाला समय ही बताएगा कि कितनी राहत लोगों को इस दम घोटू हवा से मिल पाएगी। के पास भी इस वक्त चलते हैं। Rajat is joining us from Greater Noida. Rajat, if we talk about Greater Noida, what is the situation on ground there? Is the air quality also in the very poor to severe zone in Greater Noida as well, Rajat? बिल्कुल उदय, मीटिंग का अभी दौर है वो शुरू हो चुका है। कल भी जो पर्यावरण मंत्री थे वो आए हुए थे नोएडा में, मीटिंग की। उसके बाद आखिर मीटिंग के बाद हल क्या निकलता है वो बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से दिल्ली NCR में प्रदूषण का पारा बढ़ रहा है, चाहे हम नोएडा की बात की, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, तो जहां मौजूद हूँ यहाँ पर का जो स्थिति बहुत खराब है। 550-600 के आसपास तो एक्यूआई देखा गया है। वहीं जब हम सुबह निकले तो विजुअलिटी बिल्कुल ही जीरो थी। कह सकते 50-100 मीटर के आगे का मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर स्थिति है वो ग्रेटर नोएडा कितनी खराब है, क्योंकि लाख पाबंदियां हैं वो लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जो 5 राज्यों की सरकारों को फटकार भी लगाई है, लेकिन फटकार के बाद आपकी सरकारें उस जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात है। जहां हम ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, पॉल्यूशन हब है, चारों तरफ सफेद चादर की लिपटी हुई है। कंस्ट्रक्शन साइट की बात की जाए, जहां पर गैस 4 है लागू किया गया है, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हमने कल विजिट किया, तमाम ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर चोरी छिपे काम चल रहा है। बाहर एक बोर्ड लगा रखा है कि काम बंद है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन विभाग के अधिकारियों से साठगांठ है, चाहे जिम्मेदार अफसर उनके साठगांठ है, जिसके चलते जो तमाम बड़े बड़े बिल्डर है वो अभी भी निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी है, लेकिन आदेश तो जारी होता है, लेकिन आदेश का अमल कितना होता है वो उधर देखने वाली बात होती है। जहां पर हमने तमाम कंस्ट्रक्शन साइट की, लगभग 50% साइट ऐसी है जहां पर सुबह से लेकर शाम तक कंस्ट्रक्शन का काम है
वो चलता है, कोई भी रोकथाम नहीं की जाती है। जहां पर जो नोएडा प्रशासन कहते हैं कि हमने जुर्माना भी लगाया है, हालांकि जुर्माने की रकम होती है वो लगा दी जाती है, लेकिन फिर उसके बाद भी जो बिल्डर है वो लगातार काम करते रहते हैं। आज हम एक्यूआई की बात की जाए 550 है, तो कहीं जो तमाम ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए तो वहां पर 600 है, जो रेजिडेंस एरिया है वहां पर 400 है। तो जहां पर जैसा प्रदूषण का ग्राफ वहां पर एक्यूआई देखा गया है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो नोएडा प्रशासन हो, ग्रेटर नोएडा प्रशासन हो, जहां पर 3 प्राधिकरण जिस जिले में बनी हो, जिसे हाईटेक जिला कहा जाता है, यूपी का 100 विंडो कहा जाता है, तो वहां की स्थिति ऐसी है कि जमीनी स्तर पर कोई भी अधिकारी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर पॉल्यूशन विभाग की बात की जाए तो 3 जोनों में बांटा गया है, ग्रेटर नोएडा, सेंट्रल नोएडा और नोएडा। तो तीनों विभागों में अलग अलग पॉल्यूशन अधिकारियों की तैनाती की गई है। उनके नीचे भी अधिकारी है, लेकिन वो अधिकारी जमीनी स्तर पर उतर कर सही ढंग से अगर काम करे तो उदय, तो जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर इस पर लगाम लग सकती है, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही इतनी सामने आती है कि आखिर अक्टूबर के माह से शुरुआत हुई थी पॉल्यूशन की। अगर जो बैठकों का दौर अब चल रहा है, अगर ये बैठकों का दौर अक्टूबर माह से पहले चलता तो आज ये दिन है वो एनसीआर के नहीं देखने पड़ते हैं। आखिर किसको नहीं पता है कि अक्टूबर माह में पॉल्यूशन से दिल्ली को आम जनता झेलती है। तो कहीं ना कहीं बैठक और उस पर एक्शन का प्लान पहले तय किया होता है, तो आज ये दिन है वो नहीं देखते। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का पारा है, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा दम घुटता हो, ऐसा लगता है कि हम जहरीली सांस ले रहे हैं। कई अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या जो है वो ज्यादातर अस्थमा मरीज या जो सांस की जिन्हें दिक्कत है उनकी ज्यादा मौजूदी है। डॉक्टर का कहना है कि ज्यादातर संख्या है वो वही मरीज आते हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं एक एक्शन प्लान है वो तैयार करना चाहिए। जो अधिकारी है जो कि अपने जिम्मेदारी से बच रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन करना चाहिए, और मौके पर जाकर अगर कोई भी बिल्डर या कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई काम करता है उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ अगर उनको सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जाए तो इस बढ़ते प्रदूषण पर उदय लगाम लग सकती है। नहीं तो आने वाले समय में दीपावली के बाद जो स्थिति होगी दिल्ली एनसीआर की वो देखने वाली होती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो पॉल्यूशन का ग्राफ है वो दिवाली के बाद बढ़ता है, ना कि दिवाली से पहले। लेकिन इस बार जो प्रदूषण का ग्राफ है वो अक्टूबर माह से ही शुरुआत हो चुका था। तो सोच सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में पटाखे तो बैन है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे पटाखे बेचे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि पटाखे जब चलेंगे तो जो प्रदूषण का अपार होगा दिल्ली एनसीआर में देखने वाली बात होगी। आम जनता को कहीं ना कहीं इस जहरीली हवा से नुकसान होगा। हालांकि स्कूलों पर तो पाबंदी है, लेकिन जो और भी जैसे कक्षा 9वीं से लेकर ऊपर के जो क्लासेज है वो चल रहे हैं, क्या उनको नुकसान नहीं है? कह सकते नुकसान सबको है, लेकिन सरकारें हैं वो चुप है। बिल्कुल बिल्कुल रजत बने रहिए आप हमारे संग। मैं आरजू सेठ के पास इस वक्त दोबारा चलना चाहता हूँ। आरजू, if you can hear me this time around, the question I was trying to ask you earlier was on the situation in ITO. Has vehicular movement come down? Are commercial vehicles now being seen in Delhi because of the measures taken? Is this having any effect on the pollution on ground? Well, absolutely, Uday. You know, the several action plan that has been brought by the Delhi government is being implemented on ground. It is said that, you know, the heavy vehicles will not enter in the national capital. At the same time, there will be increase in the traffic police so that there should be no congestion on the road. But what we are saying that there is a lot of congestion in Anand Vihar, there is a lot of congestion at the ITO. So the condition still remains the same. And what we are saying that the AQI is still on the rise. The pollution is increasing, whether it's in Noida, in Greater Noida or in the Delhi NCR, all the reasons that pollution is increasing. In fact, we have with us few people, you know, to ask them what problem they are facing. Hi, what's your name? I'm Rudra. What problem you are facing, because the pollution in the Delhi NCR is on rise? Actually, I jog every day from my apartments to here, and it gets a little, I get a little more exhaustion while jogging out. So it gets a little tough for me, and wearing a mask and jogging is not a very viable thing for me. So yeah, and that's the thing. And absolutely, for more of my friends recently have fled from Delhi because they don't like the pollution here, and also causing a bad image for the capital of the India as well. So yeah, that's the thing. So do you also have any plan to fly from national capital? I work here, so I don't think so I will fly from here, but yeah, why not live near the hills? Okay.
Okay. So, do you think the government is not, properly implementing the plans on ground, and that's why we see this image every year of the national capital? The smog, the pollution is on rise. Absolutely, it's quite an urgent measure that has been taken by the government. But yeah, we should plan something from previously as well. So why not plan something way ahead, 6 months ahead, so that we do not face these conditions? Absolutely right. Uday, what we are saying that the government wake up at the time on the October when the stubble burning is start happening in the nearby state. The situation get worse. Then the meetings that we are seeing that every day the meeting is being held by the environment minister to tackle with the air pollution. But the situation on ground is getting worse. In fact, I have interacted with some students as we know. The students are closed for the students, but except class 10th and 12th, these students are in fact saying that they have started feeling uneasiness. They are facing itchiness in their eyes. They are having pain in their throat. So all these problems these students have also started facing as the AQI is increasing in the national capital. The pollution in the national capital is on I think rise. Arzu, you are at India Gate, if I'm not mistaken. So let's just see what's happening at India Gate right now. Just show us around. Are you seeing less morning walkers there because of the pollution? Also, can you actually see India Gate from where you are standing and Rashtrapati Bhavan, or is it too hazy currently? Well, absolutely, it's too hazy. I would like to show the visuals to my viewers. You could see, the Rashtrapati Bhavan is not so far from this place, but we can see nothing from here. It is invisible. There is a lot of haziness in the weather. As we know, the AQI is being recorded in the severe category from past few days. And still, what we are seeing that we would like to show you the image from the other side also, the visuals from the other side also. If you see, the India Gate, in fact, is not visible from this side. In fact, few visitors have also said that they have come here in the national capital to see the India Gate, but they could not see it. So this is very disappointing what we are seeing in the national capital. And in fact, you talked about the morning walkers. Today what we are seeing is that very less people are there at the India Gate. Earlier there used to be a lot of crowd here, to enjoy, to do a morning walk, riders, bikers. But today there are very less people at the India Gate, and this is the effect as we are seeing that in the morning there is a lot of smog. So the people are preferring to stay at their home, do yoga and not, stepping out of their house because the situation on ground is very worse, and the people have started facing health issues, and that's why they are preferring to stay at home. In fact, the Supreme Court has reprimanded the governments of several states, like the states that are near the national capital. The Supreme Court have asked them to take the strict action and stop the stubble burning. Just now, because all right, Arzu, appreciate you joining us with that ground report. Also, thanks to Mahendra, Rajat, Anil, and Akshat who joined us earlier. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.